ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہو. بڑھیا. آپ کیسے ہو؟ ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں. کھانا وانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا ہم نے کام کر رہے ہیں. اچھا ہیں ٹھیک ہے. تو اچھا بتائیے آپ کچھ بتانے والے تھے ایسا بول رہا تھا وہ. اچھا کیا کیا بتانے والے جیسے تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے نہیں ہے کہ جیسے ویسی باتیں اپنے قرآن کیسے اترا ہے. ہاں ہاں. یہ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے پتہ ہے. دیکھو میں جب پہلے مطلب چھوٹی تھی ابھی تو میں کافی عمر والی ہو گئی ہوں مطلب 19-20 چل رہا میرا. تو جب ٹھیک. میں چھوٹی تھی یعنی کہ 15-16 کے بیچ اور اس سے بھی چھوٹی تھی تب میں اسلام کو بہت فالو کرتی تھی. اچھا ایک چیز جان اچھا سکتے ہو آپ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ میں جی. میں تو اپنے جو ہوں کہ جب میں اپنے 9ویں تک تو پڑھی ہوئی ہوں. اچھا مطلب کہ آپ نے اسکولی شکچھا نہیں لی ہے صرف مدرسہ والی ہے نا پڑھائی کی ہے. مدرسہ والی نہ لی ہے اسکول والی لی ہے. تو اس مدرسہ والی تو اتنی لی ہے کہ اپنا قرآن شریف پڑھ گئی ہوں اور اپنے جو اپنے کتابیں تھوڑی بہت جانتی ہوں. اچھا تو اسکول میں کتنے کلاس تک پڑھے ہو؟ جی. اسکول میں کتنے کلاس تک پڑھے ہو؟ 9. 9 تک. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ چھٹویں میں ہی ہم لوگ کو وگیان کے بارے میں پڑھا دیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ذکر مسئلہ ہو رہا تھا گھر میں تو ہم نے اس سے اس بات پہ کہہ دی ہم نے کہ بھیا ہم بھی بات کر کے دیکھ لیں گے وہ یقین اور وشواس نہیں ہے انہیں تو ہم بھی کر کے دیکھ لیں گے کہ ابھی ہم پہ آفت آتی ہے جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرا جاتا ہے نہیں کہ ہماری مشکل پریشانی دور ہو جائے. ہوں. ہے اچھا تو ہم نے دیکھیے. اس وجہ سے ہم نے کہہ دی پر ہم اتنے تو عالم اور اتنے خیر ہم پڑھے لکھے نہ آئے جو ہم نے کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے. نہیں جیسے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے سنیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اسلام کو نہیں جانتے اور اسکولی شکچھا بھی نہیں لی ہے تو بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کیا چل رہا ہے تو اس کے حساب سے ہاں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ادہرن کے روپ میں آپ نے حلالہ کے بارے میں سنا ہوگا. ہاں. حلالہ کب ہوتا ہے؟ اب ایسا حلالہ تو وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہاں ہاں وہ بہت گندی چیز ہوتی ہے نا. ہاں لیکن وہ یہ تو دیکھیے یہ حلالہ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ مسلم کرتے ہیں ہے نا. ہاں. اور جو مولوی ہوتے ہیں نا وہ لوگ حلالہ کرتے ہیں اور کرواتا کون ہے یہ حلالہ؟ یہ حلالہ تو وہی کرواتا ہے مولانا صاحب ہی. ہاں مولانا کرواتے لیکن حکم کس کا یہ حلالہ کا؟ یہ حلالے کا حکم جو ہے وہ طرف سے ملا ہوا ہے نا ہاں یہ خدا کتابوں میں ہاں بالکل بالکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ حلالے کا حکم جو ہے وہ خدا نے کیا ہے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے حلالہ میں ایک مہیلا کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ کتنا بدسلوکی ہوتا ہے اس کا پتی ہوتے ہوئے بھی اس کا خاوند ہوتے ہوئے بھی اسے کسی غیر کے ساتھ سونا پڑتا ہے. پڑتا صحیح بات ہے. یہ ایک عورت کے لیے کتنی گھٹیا بات ہے اس کے جیون میں کتنی بڑی کلنک کی بات ہے. اب ایسا ہے نا اب جو سماج کو دیکھ کے چلے عورت یا خدا کو دیکھ کے چلے عورت باجی تو سماج کو دیکھ کے چلے گی تو اپنے آپ بچائے خدا کو دیکھے چلیے تبھی بچا رہی کیونکہ وہ تو پھندے میں پھنسی ہوئی ہے نا. ہاں بالکل صحیح کہا لیکن اس پھندے میں پھنسانے کا کام کس نے کیا ہے؟ اسی خدا یہ نے تو اسی خدا یہ نے تو حلالہ لایا ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں. تو یہاں پر ہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو جس حلالہ جیسے حکم دیتا ہو یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں آپ خود یہ تو بات صحیح ہے سوچ ہے نا. صحیح ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو جب میں چھوٹی تھی میں سوچتی تھی کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ جو سب سے محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ ہم لوگوں سے ایسا قرآن کہتا ہے ایسا حدیثیں کہتی ہیں. ہاں لیکن ابھی کیا 70 ماؤں سے پیار کرنے والا اللہ کسی بیچاری لڑکی کا جس کو اس کے پتی نے طلاق دیا ہو اس کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے؟ نہیں اگر کر وہ رہا ایسا ہے نا اب ہے نا اب وہ تو امید لگائے ہوئے بیٹھی ہے خدا کے اوپر اب یہ تو جمانے والے سے تو کا ہی نہ دے رہے ہیں ہوں کہ تم ایسا کر لو تو یہ قبول ہو جائے گا اور نہ ہوں کرو گی تو ایسا کرو گی تو حرام خور کھیلایا جائے گا ہاں ہے نہیں ہاں تو صحیح اس ہے وجہ سے
ना। हाँ, अब इस वजह, अब देखो खुदा ताला ने ये कुछ नहीं उतारा है, ये तो एक जमाने ने बना रखी है, ये किताब जो बना रखी है ना कि हलाला करना, कि यो करना, कि वो करना, ये सब गलत बातें हैं। नहीं 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 नहीं, यही तो गलती हो रही है। जो हलाला है ना वो कुरान में लिखी हुई है। वो तो बात सही है ना, मैं उस बात को नहीं कह रही, जो कुरान की बात को तो मैं झुटला ना रही, मैं उस बात को झुटला रही हूँ। जाने कि हम है ना कि हमारे आदमी ने हमें तलाक दे दिया, हमने तलाक ले लिया, अब हम उसी के संग रहना चाह रहे हैं, तो हमसे क्या कह रही है बहुत सी कि अगर दूसरे के संग में निकाह करो, उसके संग में ये हलाल करो, जब तुम्हारा निकाह हुआ है। अब हम किसी का दिल तो वाजिब हो रहा है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, किसी का दिल नहीं हो रहा है, तो ये जबरदस्ती किसी के ऊपर जायज थोड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और इसलिए बहुत सारी महिलाएं इस्लाम को छोड़ती हैं, क्योंकि आप अगर एक बार आपका पति आपको तलाक दे देता है तो फिर बिना हलाला के आप उसके साथ वापस नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, हाँ ये बात तो है, क्योंकि ये तो हमारे तो खैर कुरान में ही लिखा कि बिना हलाला के तो औरत नहीं रह सकती। अब किसी का दिल है, किसी का नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको एक ना एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण मिसाल। वो ऐसी कि मान लीजिए कि किसी मुस्लिम लड़की की जगह किसी ईसाई लड़की के पति ने उसको छोड़ दिया, जो ईसाई होते हैं ना उनके पति ने छोड़ दिया, तो वापस से अगर वो वापस में शादी करना चाहती है, उसका पति उस लड़की से तलाक लेने के बाद, तो वो आराम से वापस रह सकते हैं, उनमें कोई हलाला नहीं होता। हाँ, इन लोगों में नहीं है हलाला, सिखों में भी नहीं है, यहूदियों में भी नहीं है, और जो जैन है, बौद्ध है, उनमें भी नहीं है हलाला। लेकिन हमारे अल्लाह को कौन सी प्रॉब्लम थी लड़कियों से कि हलाला उनको करवाना था? ये तो हमारे, देखो मैं आपसे तो बहुत कम हूँ जानकारी में, पर मैं बता दूं, ये तो अल्लाह ताला ने कहा, ये अपने नबी रसूलों की तरफ से चली आ रही होगी परंपरा। सोचिए कितनी परंपरा नहीं है जी, ये तो ये जानते हो ना वैश्या कैसी होती हैं? वैश्याओं जो है उनके 10-10 पति होते हैं, दो मतलब उसके तो पति नहीं होते, वो तो किसी के साथ भी कर लेती हैं। हाँ, बहुत बात सही है। ये तो जिसका हलाला होता है वो भले ही क्यों ना, मतलब कि समाज की नज़र में हलाला करने के बाद जो है वो पाक हो जाती है, लेकिन असल में उसने तो 2-2 लड़के के साथ गलत काम कर लिया ना, तो उसकी इज्जत रही कहाँ? फिर वो तो मतलब वो तो रह गई, वो तो वैश्या हो गई वो तो। अब ऐसा है, अब जब निकाह हो गया, अब हमने अपने पति छोड़ दिया, अब हम उसी के संग में रह रहे हैं, ठीक है। अब हम उसके संग में रहना चाह रहे हैं, हमने सोचा कि अब हमारी गलती से या हमारी जान पूछ के या वैसे ही हो गया हम इनसे तलाक, अब हम इन्हीं के संग पर अपनी जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ अगर वो चाहेगा वो हमें तलाक दे सकता है, जैसे हलाला होने के बाद में, और ना ही चाहे तो ना दे सकता है, तो इसमें कोई हरामखोरी थोड़ी ना, ये तो हलाला जान वो अपने इजाजत से और उसके मुताबिक हो रहा है ना, अपने कुरान दीन इस्लाम के। हाँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप क्या अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना मंजूर करेंगी? हम क्यों करेंगे भैया, उदाहरण दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब कि कोई और लड़की है, मान लो कोई मुस्लिम लड़की है, आप भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, हम लोग समझते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की है, क्या वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना मंजूर करेगी हलाला के नाम पे? नहीं, कोई नहीं करेगी ऐसे। तो आज क्यों मुस्लिम लड़कियां कोर्ट में जाके कह रही हैं कि मैं हलाला नहीं करवाऊंगी? क्योंकि वो जो सम्मान महिलाओं का होता है, वो जो इज्जत महिलाओं की होती है, वो हलाला के नाम पे ख़त्म कर दी जाती है। और क्योंकि ये हलाले की परंपरा किसने घड़ी है? अल्लाह ने घड़ी है, मोहम्मद ने बनाई है, इसलिए मेरे नज़र में वो खुदा नहीं हो सकता जिसने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ, वो तो बात सही कह रही हैं आप। आपको एक बात और बताती हूँ, ये तो हो गई हलाले वाली बात, कितनी गंदी बात है, आप इस चीज़ को महसूस कर रही होंगी क्योंकि आप महिला हैं। लेकिन एक और बताती हूँ, इस्लाम में औरतों को पीटने का हुक्म है, आपको पता है? नहीं, ये नहीं है। कुरान आपके पास कलाम पाक होगा, आपके पास कलाम पाक है, पर इसमें नहीं है कलाम पाक में। ये औरतों को पीटने का कोई हक नहीं है, मोहब्बत करने का हक तो है, पर पीटने का कोई हक नहीं है। ये तो बदतमीज जाहिल इंसान होते हैं जो बीवी को या अपनी बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है। इस्लाम में ये कुछ नहीं लिखा। मेरी बहन तुम बहुत भोली हो, कुरान के सुनिए ना,
बात है, क्योंकि हमने देखो जो हमने सुना है, जो हमने देखो पढ़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब इससे हमने पहले आपसे कह दिया, हम इतनी खैर जानकारी ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमारे नाना थे ना, वो ज्यादा काबिल पढ़े हुए, तो हम सिपारा पढ़ा करते, तो वो हमारे सामने ऐसी बात है कि हमारे मामू जान है ना, वो अपनी बीवी को मारा करते, तो हमारे माम बताया करते कि बेटा इसमें ये नहीं लिखा है कि आप अपनी बीवी को मारो, बेजा सताओ। कोई चीज अगर बीवी को गलत रास्ते देखो जाते हुए, ये कैसे देखो, ये तुम्हारा ये वाजिब है करना। अभी तुम ऐसा मारपीट करो, किसी की बेटी को परेशान रखोगे तो वो क्या करेगी। अब देखिए मैं बताती हूँ, देखो हम बताएं आपको। हाँ सुनिए ना, कुरान में आपके पास कलाम पाक होगा तो कुरान के सूरह निसा की आयत 134 134 में देखना, वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ लोगों, क्योंकि महिलाओं को तुमने मेहर दिया है, जब आपका निकाह हुआ होगा तो आपको भी मेहर मिला होगा, है ना। किसी की भी शादी होती है इस्लाम में तो उसको मेहर देते हैं। तो अल्लाह कहता है क्योंकि आप लोगों ने महिलाओं को शादी करने के लिए मेहर दिया हुआ है, इसलिए वो तुम्हारी संपत्ति है। यानी कि क्योंकि मर्द जो है वो औरत को मेहर देता है, इसलिए वो उसका संपत्ति है। समझ रहे हो, यहाँ पर औरतों को उसका मालिक बता रहा है, किसको, पति को, जबकि अल्लाह को बराबरी करनी चाहिए। उसी आयत के नीचे में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर महिला यानी कि औरत जो है वो सरकश हो जाती है, सरकश यानी कि वो बात नहीं मानती, तो पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी को पीटे, सिर्फ शक होने पे ना, इसलिए नहीं कि चलो भाई उसके कोई जुर्म है, उसको उसने पकड़ लिया इसलिए पीटे नहीं, सिर्फ अगर उसको शक भी होता है ना कि हाँ ये कहाँ गई थी, मुझसे झूठ बोल के मार्केट गई थी, या कुछ और कर रही थी, या उसने मतलब ये नहीं किया, उसको कोई भी शक होता है ना, तो वो अपने पति को मतलब अपनी पत्नी को पीट सकता है। ऐसे अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है कुरान में। अच्छा, तो आप इसको सही मानते हो? हम तो वही गलत मानते हैं, का मारपीट करना है। तो आप ऐसी कोई गलती में मारो तो सही है। नहीं गलती भी है तो को मारने का अधिकार आपको कैसे है? आप सही कह रही है, ये वाली बात तो आप सही कह रही हो, तो कोई गलती तो मारपीट का, वैसे तो नहीं। मैं तो एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर गलती कर भी दी महिला ने तो मारने का अधिकार किसी को नहीं है। क्यों मारोगे भाई, वो तुम्हारी बाप की संपत्ति है, तुम उसको मारोगी। वो महिला है, वो जानवर नहीं है कि तुम्हें मारने का अधिकार है उसको। तुम समझाओ, नहीं समझती है तो उसके साथ तुम कानूनी जो कार्यवाही है वो कर सकते हो। मारोगे जो देखो जो बिगड़ गई है ना, उसको कितना मारो नहीं सुधर सकती, और जो बनना चाहती है ना वो 2 मीठे वचन से बन जाएगी, वो मान जाएगी कि हाँ भाई इसने बोला है तो ठीक है। और जो नहीं मानेगी ना, कितना पीटो मारो नहीं मानेगी वो। अब वही तो बता रही हूँ मैं, अब मारपीट करने से कोई फायदा थोड़ी नहीं होता है। हमारे नाना यही तो कहते हैं, बेटा मारपीट, हमारे इस्लाम में मारपीट तो लिखी ना, मोहब्बत लिखी है, समझो तो अपने प्यार से करो, ऐसा थोड़ी नहीं मारपीट करके उसे समझाओ। ये बात तो आप सही कह रही हैं। तो ये तो कुरान की लिखी हुई बात है, इसलिए मैं इस्लाम को सही नहीं मानती, क्योंकि उसमें लड़कियों को मारने की बात भी लिखी हुई है। ये तो अरे अब मैं आपसे वो करूं तो क्या, हमारे नाना बताया करते, हम उन्हीं के पास पढ़े, तो वो हमें बताया करते, फिर हमने सुनी, किसी के मुंह को मारपीट लिखी है। नहीं, नाना की मत मानो, पापा की मत मानो, है ना, दादा की मत मानो, किसी की मत मानो इस्लाम की। इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने कहा है मारो, मतलब कि वो गलत है। नाना तो अपने मन से भी कह सकते हैं, क्योंकि मार खाने वाली उसकी बहू थी, है ना। सही बात है, सही। हमें आपसे ना हो जो दूसरी तरफ बात में लगी। हाँ, आपका रो बात बताइए। अच्छा ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो मारने वाली बात थी, है ना। अब इस्लाम में क्या आवाज नहीं होंगी, आवाज मुझे तो दे दिया करो। अब क्यों आवाज नहीं है, क्या बोले आप? बात है ना, रोज दिया करे, क्योंकि मुझे भैया बहुत कमजोर हूँ, जब भाई सुनती हूँ ना वो मैं करती हूँ, पर मैंने तो खैर इतनी मैंने पहले आपसे कह दी, मैं इतनी जानकारी मुझे की बात में तो मुझे जानकारी आएगी तो मैं 4 जनियों को और समझाऊं।
सही है, सही है। ये बहुत अच्छी हो आप तो, वहाँ से बहुत प्रसन्न हृदय की लग रही हो। आदमी के बगैर पूजा जाने याद है। ना अच्छी बात बता रही है। वैसे आप कहाँ पर रहती हैं? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, अहमदपुर जानती हैं? अहमदपुर कहाँ पर है? नहीं, अलीगढ़ में? जिला लोढ़ा, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। अच्छा हाँ, अच्छा, वहीं से हूँ। हाँ जरा जो हमारे भैया को भी ना समझाती रहे करो, जो गाली गुप्तानी कुछ ज्यादा वक्त है। नहीं, मैं तो भाई उन लोगों को ही समझाती हूँ जो समझ सकते हैं। आप एक महिला हो, आप औरतों की जो स्थिति है वो समझ सकती हो। अच्छा, एक चीज़ है कि इस्लाम में और फारसी और अरबी वर्ड में महिला को औरत कहा जाता है ना? आ जाए, सही बताइए, पहले सही बताइए, वो आवाज कुछ ऐसी आ रही है हिटक के। अच्छा, अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? हाँ आपकी हाँ। तो नेटवर्क इशू हो रही ना। एक महिला हो, आप औरतों की जो स्थिति है वो समझ सकती हो। अच्छा, एक चीज़ है कि इस्लाम में और फारसी और अरबी वर्ड में महिला को औरत कहा जाता है ना? आ जाए, सही बताइए, पहले सही बताइए, वो आवाज कुछ ऐसी आ रही है हिटक के। अच्छा, अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? हाँ आपकी हाँ तो नेटवर्क इशू हो रही ना। हाँ हाँ हाँ। ये परेशानी है, आवाज कुछ कुछ हिटक ऐसी वैसी आ रही है, रुक रुक कर। अच्छा ठीक है, हम लोग ना फिर कभी बात करते हैं जब भी ना नेटवर्क सही होगा। अभी जाइए, आप कुछ काम कर लीजिए। चाहिए थोड़ा बहुत बात। हाँ जरा इतने तो खैर इतनी भी ना हिटक रही है। अच्छा, अरे बता दे वो बदतमीज है। हाँ इसीलिए जरा समझाती रहा करो कि ये बहुत जा है, वो मारा थोड़ा। देखो जी, मैं एक बात कहती हूँ कि बहुत लड़का वो तो बदतमीजी करता है, इधर समझा कर करो। सारा का सारा ना कुरान का असर है, ये ऐसा हो गया। कुरान का असर, कुरान तो न पढ़ा ही ना है तो क्या असर, कुरान का असर होता तो सुधर जाता। नहीं नहीं, कुरान का असर होता तो कहीं IAS में भर्ती हो जाता ये। कुरान का ना तो IAS का भर्ती होता के, तो कुरान का असर होता है ना सुधर जाता, IAS का भर्ती होता है। ऐसी नहीं, IAS नहीं जानती आप? ठीक है। हाँ ये हाँ पता है मुझे। अच्छा, पता है आपको?